what discussion today is free of history? So most engineers को जब भी public service की याद आती है उनको UPSC की याद आती है. ठीक है, then you should also accept that Christianity has a problem in Europe, which is why Islam is the fastest growing religion in Europe. Ji Sai Deepak, welcome to Amazon Book Talks. Thank you. We were actually eagerly waiting for this interview from a very long time. So मेरा पहला question आपकी book से नहीं है. My first question is about your journey, because your journey is also very interesting. You did something that a lot of Indian engineers want to do, जो कि अपना career switch करना after engineering. So, and I think ये वो phase था जिसने आपकी सोच को भी shape किया है. Your thinking, it shaped your thinking. So, please tell us something about that. So the introduction to the first book actually contains a fairly detailed explanation for this transition. But to cut a long story short, I did not take up engineering out of any compulsion. And ये भी था कि मेरे generation में a lot of people typically had only three choices. Engineering, medicine, and if nothing works, even then commerce. Yeah. Only because nobody wants to be branded as being poor in mathematics. That's all. That's true. So I took up engineering because my goal was to become an aerospace engineer. And because I couldn't score enough to get aerospace engineering, I started with mechanical engineering in the hope that in my master's I would pursue aerospace. And for the better part of my engineering journey, for the first 3 years, I was exclusively committed to this goal. फिर 2004 में जब the political, let's say, situation in the country had changed, the atmosphere had changed, इसके बहुत सारे repercussions आपको campus में नजर आते थे. And the campus politics in Tamil Nadu, even in engineering colleges, is fairly vicious and volatile. At least it used to be in my days. From what I hear, it has become only worse. And so I wanted to understand iski jad kya hai? What is the reason for this? I'm perfectly comfortable with political disagreements, but it was not limited to political disagreements. Or bhi 11. So I wanted to understand what the issue was. Now, the background also is that I've always been fairly interested in current affairs, right from my school days and whatnot. I was known for quizzing, debating, and everything else. Okay. So it's not as if I was new to all of this. But the urge to be a part of the conversation and to contribute to the understanding better, that was certainly on a high after 2004. So I realized that if I continued down the path of being an engineer, the best I could have done would be to either become an R&D head or maybe set up my own business or go to America, because if you're doing aerospace engineering, then at least in those years the options were outside the country. That's true. So मुझे यहीं पे रहना था. One way or the other I wanted to contribute. So most engineers को जब भी public service की याद आती है उनको UPSC की याद आती है. So that was one of the options I seriously considered. But I realized that एग्जाम क्लियर कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैं सिस्टम में तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे समझ में आ गया. एटलीस्ट आई वुडंट बी एबल टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मोस्ट पीपल इन द सिस्टम टू, आई वुड से, बी स्लाइटली docile and reserved in their positions. I'm fine with being reserved in expression, but not in the content of what is being said. I will certainly speak my mind wherever it's necessary. I certainly observe expression for the better part of my conversations or in my public discussions. Okay, but अगर मुझे लगता है कि ये सही है, ये गलत है, I will certainly not mince words about it. At that stage is when I had gone to IIT Kharagpur to present a paper as part of an engineering program. The then director of IIT Kharagpur was Dr. Shishir Dubey, who was basically from Prayag. Then it was called Allahabad. And he said that from 2006 onwards, they were going to introduce a program in law, LLB with specialization in intellectual property rights. So IIT में LLB, ये प्रोग्राम आपके पेरेंट्स को बेचने के लिए आसान हो जाता है. ये किसी और जगह में अगर LLB होता तो मुश्किल होता. आप इंजीनियरिंग से क्या फाइल पकड़ के किसी के पीछे घूमेंगे, ये क्या हो रहा है. So my parents certainly had their own reservations, genuine reservations, because I come from a family that is straddling the thin red line between low middle class and middle class.
तो पेरेंट्स को ये डर लगा रहता है कि वकालत में जाके अगर फंस गया तो क्या हो जाएगा, और आउट पे तो सिर्फ बड़े लोग जाते हैं, Like any other Indian parents. राइट, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मतलब इसकी कमाई क्या होगी, कौन इसको लड़की देगा, बोल रहा है, these were kind of questions every parent has. So I will not make light of their concerns. They were well meaning, and after all your parents look out for you. It just so happens that मेरा दिमाग तब तक बन गया था that मुझे यही करना है, I have to get into law. After a lot of conversations with my parents, they understood that इस पोजीशन से तो अड़ गया है और यहाँ से हिलने वाला नहीं है. So that is how the transition happened, and I'm very happy I made the transition because it gave me the ability to equip my previously incoherent understanding with a very clear background. एक पृष्ठभूमि मिल जाती है, ठीक से एक परिप्रेक्ष्य मिल जाता है, where you're able to put everything in proper structure. आपके आर्गुमेंट्स और आपके बेसिक डिबेटिंग स्किल्स को और थोड़ा ये शार्पनिंग हो जाता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन. एंड वंस आई टुक अप लॉ आई रियलाइज्ड दैट आई वांटेड टू गो टू कोर्ट्स. That was a very clear interest. Litigation is the goal, was always the goal. I was very clear the day I stepped into the law school also. But of course I told my parents कि मैं इन हाउस चला जाऊंगा, मैं कंपनी में जाके वकील बनूंगा, मैं बाहर जाके लड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट कभी नहीं जाऊंगा, काला कोर्ट कभी नहीं करूंगा. Don't worry about that. But once when the final opportunity came to take a decision, I was very clear. I told them this is what I wanted to do always. I wanted to wait for you to get comfortable with the decision. My decision was already made. So then they said, आधे वकील तो बन ही गए हो. So that was the basic nature of the journey. And while people today know me for my constitutional matters, 95% of my practice, or 90% of it, has been pure commercial. Okay. Because my primary areas of practice are Bauddhic Sampada, intellectual property. Oh, sure. Then commercial areas of practice such as Companies Act, Insolvency, Competition Act. These are the primary areas. Constitution, I have taken it in a very selective fashion, क्योंकि I'm a first generation litigator, so I have to pay my bills. Constitution doesn't exactly pay your bills. ना ही वो आपके lifestyle और office को maintain कर पाएगा. At least not in the initial years. So the idea was to basically focus on commercial litigation, make a good name for yourself as a commercial litigator. क्योंकि commercial litigator को लोग इसलिए seriously लेते हैं क्योंकि वहां पे the competition is tough and सब्जेक्ट की जो बारीकी है उसको बहुत ठीक से समझना पड़ता है. एंड जब आप उस बारीकी को कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने में लेके आते हैं, then it's a very different ball game altogether. तो इन दोनों जो अनुभवों को मुझे मिक्स करना था. The idea was to combine both experiences. So people who have seen me primarily as a constitutional litigator through newspapers and other places get surprised when they know that I'm primarily a commercial litigator. And people in the fraternity have always known me as a commercial litigator. ये छलांग इसने कब मारी? Because you won't find too many people doing both intellectual property and constitutional law, pure constitutional law. I'm not saying I'm an exception. I'm saying none of those things. I'm just saying ये उतना भी common नहीं होता है. And I should only be grateful to the gods and people who have given me the opportunity to do both things. So that's been the let's say the journey so far. ओके, मैं पहला क्वेश्चन आपकी इस बुक से ही करना, मतलब आपकी पहली बुक है इंडिया डिजिटल भारत. मैंने ये बुक रीड की एंड इट्स अ वेरी गुड बुक. बट एक चीज जो मैं सोचता हूँ इस बुक के बारे में कि आपने इससे एकेडमिकली भी आपने इससे काफी रिसर्च करके लिखा है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसे लेमन टर्म्स में बताएं. जिन लोगों ने इस बुक के बारे में नहीं जानते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि आखिर ये बुक एग्जैक्टली किस बारे में. तो पहला चीज मुझे ये करना पड़ेगा एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर कि श्रेय की बात जब होती है, पूरा रिसर्च मैंने नहीं किया है, मेरा एक रिसर्च टीम भी है. My research team comprises of two people, both of them are lawyers. For the first book, it was Ms. Shaktiki Sharma, who was very good at policy research and historical research, and Ms. Vanya Agarwal, who assisted her. So they worked with me on the research. I can take credit for close to about 60% of the research of the book on my own, but at least 40% has come from them. Okay. And in the sense, I would say, मुझे इस कालखंड के डिबेट्स की जरूरत है. निकाल के दीजिए, इसको समराइज करके दीजिए, उसको हाईलाइट करके दीजिए, एंड देन वी हैव अ कन्वर्सेशन. सो द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक वाज वेरी सिंपल. 2018 में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सबरीमाला मैटर का आर्ग्यूमेंट किया था.
फिर 2019 में मैंने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल लिटरेचर केस के बारे में आर्ग्यू किया था डिवीजन बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट पे। जब ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का केस उसकी जो रिसर्च चल रही थी, सो हमने ये देखा कि जितने भी हमारे राजे महाराजे थे, when they decided to enter into this agreement with the Indian Union कि हम भारत के भाग बन जाएंगे, most of them were Hindu rajas and जिनके अपने कुलदेवी कुलदेवता थे, and they preserved their rights over their traditional temples when they were arguing with or when they were negotiating with the Indian government. So मेरा सवाल ये था, rather प्रश्न ये था कि अगर हमारे सारे प्रिंसली स्टेट्स हिंदू थे या फिर इनका अपने एक रिलीजियस कैरेक्टर था और बंटवारा का बेसिस भी यही था, तो हम सेक्युलर कब बन गए और कैसे बन गए? हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन? इफ ईच ऑफ द भाग इज रिलीजियस नेचर, तो होल सेक्युलर कैसे बन गया? दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन, राइट? तो आई डिसाइडेड कि इस रिसर्च के बेसिस पे मुझे एक पुस्तक तो लिखना पड़ेगा कभी ना कभी। तो 2019 में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अभी टाइम आ गया है कि आप एक पुस्तक लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। बट एक आर्टिकल लिखना और पुस्तक लिखना अलग चीज है। इट्स लाइक सेइंग कि मैं 100 मीटर डैश करूंगा और दूसरे कि मैं मैराथन करूंगा, राइट? तो तैयारी तो अलग लेवल की होती है। So I needed time. My practice commitments have always been fairly hectic and packed. And with time, it has only increased more. So the idea was to find a window. और नियति ने विंडो दे दिया सबको लॉकडाउन का 2020 March. So I did two things. I lost weight and I wrote a book. Okay. I used 6 months to do both. In the same 6-month period, I was losing weight and was also writing a book. So the idea was to first test my ideas through a series of pieces in a column. So I used to write for the Daily Guardian, and मैंने 37 pieces लिखे थे इस book के सारांश के basis पे. And then I decided that अब मेरे पास ability है consistently एक book को खत्म करने की, and material भी है. So I started in October. I started on Vijayadashami, October 12th, 2020, and I finished on Ram Navami of 2021. I think it was maybe 12th of April or maybe 21st of April. Sorry, 21st of April. So 6 months and 9 days tentatively yahi tha. And that basically told me, okay, now you can. But the choice was, will you focus on the style of writing or will you focus on the content? Because my basic style after years of being a litigator, एक rigid writing हो जाता है। Almost as if आप एक बहस पेश कर रहे किसी के सामने। तो उसको पढ़ना नॉन लॉयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। I don't deny it. And this is after 7 rounds of editing. तो सोचिए पहले इसका मूल्य क्या हुआ होगा। Okay? And the best part is, I decided that शैली के लिए मैं अपने कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। I will take that chance. And 2, I was also clear that इस बुक को कोई फ्लाइट में ऐसे कैजुअली नहीं पढ़ पाएगा, मैं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। ये हमारी हिस्ट्री के बारे में है और हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है और हमारे वर्तमान को दर्शाता है। So therefore I decided that I will target specifically academic institutions, policy institutions, UPSC coaching centers and बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके इंडिया डिपार्टमेंट्स में भारत के बारे में राष्ट्रनाम लिखा गया। So that was the goal. I'm happy to say that quite a few institutions have started looking at the book. IIM Lucknow certainly teaches this in certain departments. I know this for a fact. Banaras Hindu University does this in the literature circles. I think it has also entered the Cambridge Library. Okay. And by 2021 end, it was among the top 5 books, I think, on your platform. Yeah, Amazon. Yeah. It was sharing space with Priyanka Chopra and Sanjay. So that happened. And I think last count it is sold over 1 lakh copies or 1.5 lakh copies. That with the second book I think around 2 lakhs. So there are only 2 ways I can interpret this. That to assume that audience ऐसे books को पढ़ती नहीं है, इसके लिए कोई audience नहीं है, वो गलत है। या फिर जो audience मेरे lectures को पहले सुन रही थी, उस audience को मैंने divert किया है पुस्तक की ओर। That there was already an existing base of people who were curious कि अगर मैंने इतने सारे लेक्चर्स दिए हैं तो लिखा क्या होगा, तो क्यूरियोसिटी फैक्टर तो हुआ होगा। From there, word of mouth has actually spread tremendously. So I'm grateful to the readers for having taken ownership of the book. Okay. Were you expecting this kind of success any time? मैं आपको बताता हूँ कि मेरा actual reaction when I knew for a fact
at that point, my following across social media was 500,000. Okay. Okay. 500,000 across this. That's a big number, yeah. Then this was in 2021. Now, in one platform, it has crossed 600,000. Another platform also it has crossed 650,000. तो वो तो चलता ही रहता है. मेरा ये मानना था कि इसमें से 25% भी अगर लोग पढ़ लेते हैं तो बुक नंबर 1 पहुंच ही जाएगा. बिकॉज नॉन फिक्शन के लिए द फिगर फॉर गुड सेल्स और बेस्ट सेलर इज जस्ट अबाउट 30,000-40,000. Yeah. उससे ज्यादा तो होता नहीं है. भारत में तो यही है. I think it's a shame for a population the size of Bharat. That's true. But we're looking at an English book. We should be careful about that also. तो अंग्रेजी में लिखी हुई एक पुस्तक के लिए अगर मुझे 20 या 25,000 रीच करना है, अगर 25% ऑफ पीपल हु फॉलो माय लेक्चर्स उसको खरीद लेते हैं तो हो ही जाएगा. बट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट गिव अस ट्रू आइडिया कि होने क्या वाला है वाज द डे द प्री रिलीज हैपेंड ऑन योर प्लेटफॉर्म. आई थिंक दिस हैपेंड ऑन 7th of July 2021. शाम तक ये नंबर 1 पहुंच गया था और आपका वेबसाइट क्रैश कर गया था 7 घंटे. सो दैट्स व्हेन द पब्लिशर हैज सेड हमने जो बेसिक स्टॉक जो हमने तैयार कर रखा था अब ये कम पड़ने वाला है, ढील रन इट अप. एंड देन आई थिंक द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड. लॉट ऑफ पीपल आल्सो सेड ये वकील क्या लिख रहा है हिस्ट्री पे, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है. मतलब कोई भी आज उठ के बोल देता है कि मैं भी इतिहासकार बन गया. मैं तो इतिहासकार हुई नहीं. आई एम नॉट सेइंग दिस. मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में बात करने की मेरी हैसियत भी है, औकात भी है, पोजीशन भी है, ट्रेनिंग भी है, क्वालिफिकेशन भी है. पक्का बात करूंगा. लेकिन संवैधानिक इतिहास के बारे में आप आइसोलेशन में कभी बात नहीं कर सकते जब तक आप पूरे लेट्स से 360 डिग्री व्यू नहीं लेते. सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड माय रीडिंग ऑफ हिस्ट्री इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ये सारी जो अपनी जर्नी है ये संविधान की ओर कैसे जा रही है. दैट्स द बेसिक आइडिया. You have raised some problems with British education system. जी. मैं भी एक्चुअली उसके ही प्रोडक्ट हूँ. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मिशनरी स्कूल्स. तो मैं एक्चुअली खुद जानना चाह रहा हूँ व्हाट एग्जैक्टली वाज और इज रॉन्ग विद दिस सिस्टम. देखिए ऐसा नहीं है कि मैं रामकृष्ण विद्यालय से बाहर निकला हूँ या फिर माता अम्बिकानंद के बुक से सॉरी स्कूल से निकला हूँ और इवन चेन्नई मिशन. आई हैव कम फ्रॉम क्रिश्चियन स्कूल. ओके. जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था मुझे अपने स्कूल के एक्सपीरियंस याद आ रहे थे जब when I was reading this book for this book which is that you are not allowed to speak in about the in these schools. If you do, you're expected to pay a fine or there will be a punishment. To moral science के नाम पे आपको क्रिश्चियनिटी रिपैकेज करके पढ़ाया जा रहा था. That I have seen. Okay. And the images in the books were biblical in nature. उनको दोष देना मेरे हिसाब से इज ओनली 50% ऑफ द प्रॉब्लम क्योंकि आप जानबूझ के अपने बच्चों को वहां पे भेज रहे हो उसके बाद आप क्यों रोगे. Because a lot of people actually said because they want their kids to learn. हमें यही चाहिए, हमें ये सब चाहिए. हाँ कि वो बोलचाल में ये सीखने. कांटा चमचा कैसे यूज करना आना चाहिए. All of this that's it. The grooming on the social basis associated with common education is what most Indian parents want. Let's be even blunt. Most Hindu parents want. Okay. So you can't blame them beyond the point. But the point is आप भूल ही रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है और क्या होगा. अचानक से आपको ये यू हैव दीज एपिफनीज लाइक हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए, कब हो गए. आप इनको 12-13 साल एक इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं जहां पे 12 घंटे या 8 घंटे एक दिन में यही पढ़ रहे हैं. बाहर आके आपको क्या उम्मीद है कि ये क्या सोचेंगे अपने कल्चर के बारे में. उल्टा ही सोचेंगे. ओके. या फिर एग्जैजरेटेड स्टफ ही सोचेंगे विच इज नेगेटिव इन नेचर. राइट. So which is why I think one of the things was to say that perhaps it's time for people to understand history because लोगों को लगता है history past की study है. History past की study नहीं होती है मेरे मुताबिक. History is a study of the causes for the present. वर्तमान के जितने भी कारण होते हैं उसकी जो जर्नी होती है उसको हिस्ट्री कहते हैं. So it is extremely relevant. एंड आज ऐसा कौन सा मुद्दा है हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता है. तो ये सोचना या समझना दैट हिस्ट्री इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द वाइन टेस्टिंग एलिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी दैट इज दिल्ली जहां पे सिर्फ लेक्चरर्स बैठ के लड़ते रहेंगे, रविन्द्रनाथ थापर और इरफान नदीम लड़ते रहेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो जो लिखते हैं बच्चे पढ़ते हैं और इसका असर होता है. आपके impression of yourself and the impression of the community is dictated by what you're being fed in schools.
So think of this as an attempt to hit reset. Okay. You have written one line which is, after all, how can one feel the loss of a thing whose existence one has become unconscious to? This is in relation to the native community not remembering their own past. जी. This has happened in Africa, Correct. Asia, Latin America as well. Correct. आखिर कहाँ गलती हुई, स्पेशली मैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया जानना चाहूंगा, क्योंकि उनका तो वी डोंट नो अबाउट देयर पास्ट दैट मच, बट इंडिया के बारे में हमारे ऑडियंस जानते हैं. जी. इंडिया से कहाँ गलती हुई कि वो अपने ही पास्ट को भूल गया? जब लोग भारत की इतिहास को पढ़ते हैं, मेरा उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगा कि ये दो कालखंडों को ठीक से पढ़ें. एक है ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस के आने से पहले और उनके आने के बाद. जो सेल्फ हेटिंग टेंडेंसी है, जो आत्मद्वेषी जो टेंडेंसी होती है, वो अपना सर उठाता है यूरोपियन के आने के बाद, उसके पहले नहीं. उसके पहले जितना भी आपका दमन हो रहा था, आपने उसका पलटवार भी किया और जवाब भी दिया. आपके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन कभी ना कभी आपने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया. क्योंकि यूरोपियन के पहले जो यहां पे आया था, उसने तलवार का इस्तेमाल किया, और जब कोई आपके ऊपर तलवार का इस्तेमाल करता है तो आप भी तलवार उठा देते हैं. क्योंकि अब ये सर्वाइवल का बैटल हो जाता है, शास्त्र का बैटल नहीं होता. इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल आफ्टर दैट, राइट. लेकिन उसके बाद जो आया, उसने कहा मैं आपको मानसिक तरीके से बदलूंगा, और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन सिस्टम का प्रयोग करूंगा. ये भारत का आइसोलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था. यूरोप अगर लैटिन अमेरिका जाता है, पूरा लैटिन अमेरिका ईसाई बन जाता है. न्यूजीलैंड जाता है, यही होता है. अमेरिका जाता है, यही होता है. तो किसी के आने के बाद अगर कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है, इतना तो कॉमन सेंस बनता है कि आप उस बदलाव को इसके आने के साथ जोड़ें. But argument can be given because these culture or religions had problems, that's why they accepted the new religion. Fair enough. ठीक है, then you should also accept that Christianity as a problem in Europe, which is why Islam is the fastest growing religion in Europe. मान लीजिए, no problem. जो भूत के लिए सही है, वो वर्तमान के लिए भी सही है, मान लेते हैं इसको. The point is this: हिस्ट्री लीनियर नहीं होता है, वो एक चक्र होता है, क्योंकि हमारी जो सोच है काल के बारे में, वो काल चक्र है. सो इट इज अ साइक्लिकल थिंग. सो कल्चर, सिविलाइजेशन जो भी है, ऊपर नीचे होता ही रहता है. दैट कीप्स हैपनिंग. सो आई एम नॉट सेइंग हर चीज को आप एक विक्टिमहुड नजरिए से देखिए, बट अगर आप ये कहेंगे कि हिस्ट्री का कोई महत्व ही नहीं है, तो सीख क्या लेंगे आप? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में भी अगर एक लेट्स से प्लेन क्रैश हो जाता है, आप उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तक आप पूरा मतलब एक एनालिसिस करते हैं कि इसका कॉज कहां पे है, to improve for the future. करेक्ट. जो आप मशीन के लिए कर सकते हैं, क्या आप एक सोसाइटी के लिए नहीं करेंगे, राइट? सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट हमारे अंदर भी कुछ वीकनेसेस रही होगी. मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हमने सब कुछ कर दिया. मैं ये कह रहा हूं, ये तो मत सोचो कि हमने कुछ नहीं किया, कि हमने भी, हमारे में भी कोई वैल्यू रही होगी, इसलिए तो इतने सारे लोग यहां पे आ रहे हैं हमें लूटने के लिए, राइट? सो द इंसेंटिव ऑफ द इन्वेडर टू लूट यू इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट यू हैड समथिंग ऑफ वैल्यू टू ऑफर. आपने रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया है, आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया है, तो ये कहना कि आप कूपस्थ मंडू थे, यू वर ओनली अ फ्रॉग इन द वेल हु हैड नो नॉलेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट. तो ये आइडियाज कहां से आ रहे हैं? जब ये बातें आप आज की पीढ़ी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड होगा. डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स अगर इनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड लगता है, टेल मी दैट my diagnosis of the problem is not shown, explained and proved through their behavioral questions. एक और अगर हम इस चीज को मान भी लें, चलिए ठीक है, कुछ लोग मानते हैं दिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, बट देयर इज एन आर्गुमेंट के स्पेशली करेक्टिंग द वर्जन ऑफ हिस्ट्री के आज इसका क्या इंपॉर्टेंस, बिकॉज यू नो लेट पीस बी पीस, जो हो गया मुगल्स के टाइम, जो ब्रिटिशर्स के टाइम हो गया, उसे जाने देते हैं, राइट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट नाउ? भारत का ऐसा एक कालखंड बताइए पिछले 1000 सालों में जब पीस था. तो पीस तो एक आदर्श है, उसके चक्कर में आप सत्य को तो मतलब डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट,
राइट? पीस के नाम पे जितना हमारे हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उसी का नतीजा आज ये सब हुआ है. Okay. Is the reservation discussion free of discussion on history? Is the discussion with respect to the CA free of history? Is the discussion with respect to NRC free of history? Is the reservation with respect to भारत सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, अगर कोई कहता है, is it free of history? What discussion today is free of history? So history is very, very prasangik. It is very, very relevant to the present. So problem is when जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं ये कहते हैं, अगर आपका इस सब्जेक्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं है, आप इस पे बात ही नहीं करेंगे, तो आप पुस्तक किसके लिए लिख रहे हैं? एक दूसरे से पढ़वाने के लिए या फिर हमारे लिए? Then let's do one thing. Let's abolish all the history departments across the country. Let's only teach sciences. Humanities की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो वहीं से निकल रहा है अभी. So let's close all humanities. Let's focus purely on equipping and imparting our students with utilitarian skills which are necessary for industrialization. छोड़ देते बाकी सब. सांस्कृतिक नॉलेज तो दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली देते बैठेगा, कोई और नहीं देगा. When you have a history department and there are people who are actually actively using history to defeat India's claims over Kashmir or to defeat India's existence by calling the Indian subcontinent as the South Asian subcontinent, तो आपको memorization of history आपके आंखों के सामने हो रहा है. Surely we shouldn't be saying that history is irrelevant. Since Bharati civilization has been a victim of, let's say, Marxist distortion of history, it does not have the luxury of saying that history is elitist pursuit. No, it is not. It is relevant to all of us. At least मैं तो खाते पीते खानदान से आता नहीं हूँ. I come from a low middle class family. So I have no incentive to say, no, let's take up history at the expense of livelihood. No. I have done engineering, I've made the transition to law, I've come from a low middle class family, so I'm confident of saying that at least my position is not elitist. आपने बात और भी की है, which is Western idea of economic growth, which is different from the native idea of economic growth, which was correlated to keeping nature together with yourself. पर हम जो फॉलो कर रहे हैं, I mean ठीक है, हम सोशलिज्म भी फॉलो किया है, लिबरल आइडियाज भी फॉलो किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ओवरऑल देखा जाए तो वी हैव बीन फॉलोइंग व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन फॉलोइंग इन इकोनॉमिक परस्यूट. What do you think about this system from independence, and do we need to change this? क्या present government सही कर रही है, उसे भी चेंज करना चाहिए अपनी पॉलिसीज? जब भी आप डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं या फिर उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करते हैं, तो लोग ये कहते हैं, अच्छा ये चाहता है कि हम सब गांव चले जाएं और सब खादी मारते बैठे, चक्का घुमाते बैठे. He wants only village economy, this and that. अगर कल यूरोप से कोई आता है और कहेगा The way of the future is de-urbanization, अगर आपको जिंदा रहना है, तब हम उसकी बात मान लेंगे. यहां से कोई कहेगा तो हम कहेंगे ना, this fellow is like a typical Hindu idiot को जो गांव से आता है, इसको कुछ नहीं पता है. गोरे साहब आके कहेंगे इसी बात को, लेकिन वो पैकेज कर देंगे एक एकेडमिक पेपर में, या वहां मतलब 5 शब्द उन्होंने फेंक दिए तो हम इसको सुनेंगे. That actually is proof of what is happening. But let's answer this question at a deeper level. भारत को न साइंस न साइंटिफिक टेम्पर किसी और से सीखने की जरूरत है in terms of respect for the subject. Okay. We couldn't have achieved all the architectural marvels, all the roads that were made, and the sheer, let's say, the scale of construction that we have undertaken across the country. Surely you understood physics. The point is, you would have understood in a slightly different way. साइंस को अप्रोच करने का तरीका हर सिविलाइजेशन का एक नहीं होता है. ये दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कोई अगर कहता है कि साइंस में क्या वेस्टर्न साइंस लगा रखा है, राइट? साइंस तो साइंस होता है. नो, दैट्स नॉट द केस. आई एम नॉट सेइंग 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2. आई एम सिंपली सेइंग फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू व्हाट नॉट, जापानीज हैव अ वे ऑफ डूइंग इट, यूरोपियंस हैव अ वे ऑफ डूइंग इट, इंडियंस हैड अ वे ऑफ डूइंग इट. आज उसको वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पे पुश किया जा रहा है. ओके, सो देयरफॉर अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो नजरिया होता है वो हर संस्कृति का अपना एक यूनिक नजरिया होता है. दैट इज व्हाट इज मिसिंग. नाउ अप्लाइंग दिस टू डेवलपमेंट, आई बिलीव दैट
इफ वी गो विथ एंडलेस ग्रोथ मॉडल, इसका सीधा असर पर्यावरण पे पड़ेगा. And when 1.4 billion people want everything under the sun and everything that the West enjoys, मैं necessities की बात नहीं कर रहा, मैं basic standard of living की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो सारा होता है, there is an entire consumer industry which is catering to the high-end society or the high-end section of the society. Yeah. If everybody aspires for it and everybody wants it, does पृथ्वी have the resources for it? ये सवाल पूछना अभी जरूरी बन चुका है. And when we are in a position to chart an economic growth for the next 25 years, 50 years, 100 years, I am just saying, learn good things from the West. Nothing wrong with it. The ability to work as a team, the ability to document, the ability to give credit, जो कहते हैं कि intellectual property के principles हैं. Yeah. पाश्चात्य जगत के जितने भी लोग हैं, at least their ancestors were thieves of intellectual property. So they have no business teaching us about principles of intellectual property and intellectual integrity. I said, please, आप ये ज्ञान और ये भाषण किसी और को दीजिए, आपकी हिस्ट्री मुझे पता है. Before मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड का मॉडल नहीं हो सकता है. प्लेन्स का मॉडल हिमालयन रीजन का मॉडल नहीं हो सकता है. भारत में जब पानी की दिक्कत है इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस, पानी के बेसिस पे जितने इंडस्ट्रीज होते हैं या हेवी वाटर इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उसका हम क्या करें? I'll give you the simplest examples which you can immediately relate to. Why do we export so much of basmati? Basmati is a heavy water consuming product. Even the hybrid version, it consumes fairly extensive water. Yeah. जिसका भूमि पे भी असर होता है, salt levels पे असर होता है and everything. Why are we doing this? Exporting rice and basmati rice is as good as exporting water. Can Bharat afford to do this? So you will have to ask yourself, what is the trade-off here? You can say revenue, great. But how long will this last? Somewhere you will need to have an honest conversation with the public saying, what is it that we can do to sustain this model for a long time? Also respecting environment. We have so many dog lovers in Delhi and so many other places. Why doesn't that translate to nature love? Why only dog lovers? Point ये है, you must respect the rights of non-human beings also. डेवलपमेंट के नाम पे आप प्रोजेक्ट बनाते जाइए, मतलब शहर बढ़ते जा रहे हैं, villages are going, farmlands will go, everything will go. लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ से लोगों को हिमालय पर्वत दिख रहा था. From Noida, by the way, people could actually see when the pollution levels came down. They could start seeing the peaks. Nilgai started coming out of forests and let's say, I don't know where they were even hiding. Yeah. नोएडा में नीलगाय कहाँ होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे सब बाहर आ गए थे, राइट? सो दैट मीन्स when human activity goes down, nature will have a chance. But if humans constantly do this, where does nature stand a chance? Who is going to speak on behalf of those creatures which can't speak? I have 3 dogs. I'm a huge animal lover. I have to ask this question. लोग कहेंगे आप ये भी कहते हैं और आप पढ़ने के बारे में भी आप बोलते रहते हैं. ऐसा उसका भी एक रीजन है, इसका भी एक रीजन है, दोनों हो सकते हैं. You don't need to see this as some kind of a zero-sum game कि अगर एक है तो दूसरा नहीं रहेगा. That conversation I think is not happening. और जो भी इस conversation को छेड़ने की कोशिश करता है, उसको बोल दिया जाता है कि आप एंटी डेवलपमेंट हैं, आप ये हैं वो हैं. पर्यावरण की रिस्पेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ना मार्क्सिस्ट होने की जरूरत है. आपको सिर्फ एक सनातनी होने की जरूरत है. इस बुक में आपने एक और चीज मेंशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे एक खास बात इस बुक की, जो कि है ओरल ट्रेडिशन से बात करने की, क्योंकि कोलोनियल माइंडसेट आपके हिसाब से ये कहता है कि इफ यू हैव फेथ यू शुड हैव अ बुक, जी, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर नेटिव सोसाइटीज बिकॉज जी सम सोसाइटीज डिडंट इवन हैव अ स्क्रिप्ट. करेक्ट. तो उस बारे में जरूर बताइए. एक है कि आप ईसाई बन जाए, दूसरा है कि आपके धर्म का ईसाईकरण हो जाए, जहां पे आप अपने ही धर्म को दूसरे के मापदंड के नजरिए से देखते हैं या तोलते हैं. दैट आई थिंक इज द इंडियन एक्सपीरियंस. अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई ये हमारा ट्रेडिशन रहा है, सबसे पहले सवाल उठता है ये कहां लिखा है. तो श्रुति नाम की एक चीज होती है हमारे इस संप्रदाय में, ट्रेडिशन और परंपरा में. यू हैव बोथ श्रुतिज एज वेल एज स्मृतिज, दोनों भी है, राइट? तो
एटलीस्ट एज फार एज द वैदिक फिलोसफी इज कंसर्न, दोनों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया था. यू हैड रिटन स्क्रिप्ट्स, यू हैड रिटन, तो शास्त्र जो है यू कैन थिंक ऑफ देम एज प्रैक्टिकल यूजर मैनुअल्स एंड प्रैक्टिकल कोड्स कि कौन क्या क्या कर सकता है अपने कल्याण के लिए. व्हाट कैन एनीबॉडी डू टू रीच अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल ऑफ इट एग्जिस्ट्स. तो ये कहना कि हमारे पास कोई रिटन ग्रंथ ही नहीं था, कभी नहीं था, नो आई एम नॉट सेइंग दैट. But we had a hybrid tradition is my limited understanding based on what I've read so far. कभी कभार होता क्या था, अगर सोसाइटी का प्रैक्टिस कुछ और है और शास्त्र में कुछ और कहा गया है, तो सोसाइटी के प्रैक्टिस को स्मृति के ऊपर वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि ये आज के सिचुएशन को दर्शाता है और ये एक रिकॉर्ड है कि कभी किसी टाइप पे ये हो रहा था. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस अप्लाइज इन ऑल सिचुएशंस. मंदिर के मामलों पे हो सकता है कि शास्त्र को ही प्राधान्य मिले या इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि उसकी अपनी एक पद्धति है, अपनी एक विधि है, उसकी एक मान्यता है. सो आई एम सेइंग दिस स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ माय एक्सपीरियंस इन सबरीमाला. जब हम ये कहते हैं कि उस मंदिर की पद्धति ये है, वो एक तांत्रिक मंदिर है, वहां पे अलग तरीके का तंत्र होता है, और असम का तंत्र और केरल का तंत्र जो है ये अलग अलग होते हैं, तो उसके कुछ अलग नियम होते हैं. सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये किसने कहा, किस ब्राह्मण ने कहा और कब कहा, किसने लिखा. राइट, 1000 साल से अगर कोई इसको फॉलो किए जा रहा है तो एक कलेक्टिव विजडम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हुए जा रही है. तो वहां पे अगर आप कहें कि यहाँ पे पुस्तक दे दो, हम पहले किताब थोड़ी है, वी आर नॉट द पीपल ऑफ द बुक, राइट. वी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट मॉडल. That is where my argument is coming from. Okay. So have the court started accepting this argument now? I would say the court is much more open to this point of view. Okay. Whether it is accepting it or not, ये देखा जाएगा जब ये मैटर फिर से लिया जाएगा लॉ जजमेंट के सामने. Okay. Where the reviews are still pending. But the review petitions are still pending. The question is whether the public has understood this. जो कहते हैं कि हमें इस मंदिर में हमारी आस्था है, दिस इज आराध्य एंड ऑल दैट, एटलीस्ट आपको तो पता हो कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद आप बाकी लोगों को समझाते बैठे, बाकी लोगों को ज्ञान देते बैठे. आपकी नेक्स्ट बुक इस सीरीज में है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान जी, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस. जरा आप बताइए इसके बारे में, मिडिल ईस्टर्न कोलोनियलिज्म जिसकी आप बात करते हैं, इसमें क्या है ये एग्जैक्टली? तो कल ही एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे इस बुक का एक रिव्यू डाला है, इंटरेस्टिंग है, एंड I'm happy to share this with you that he has focused on the title heavily. Okay. कि इंडिया भी इस्तेमाल कर रखा है और भारत भी, ये हो क्या रहा है. So he is basically said भारत जो है हमारा नेटिव कॉन्शियसनेस है, इंडिया जो है हमारे ऊपर थोपा क्या है बाहर से इन टर्म्स ऑफ द वे ऑफ थॉट, एंड पाकिस्तान हमारे तरफ से छिन गया है, एटलीस्ट दैट एरिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो भारत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फंस गया है. ओके, दोनों एक अलग अलग तरीके के मानसिक दास्तान को दर्शाते हैं. ओके, जरा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इंडिया एग्जैक्टली है क्या है उसमें. मेरा ये मानना है कि समझ लीजिए आपका एक नाम है ए, बाकी लोग आपको एक्स बुलाया जा रहे हैं. अगर उसके बेसिस पे आपने एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि आज से मैं एक्स हो गया, ए नहीं रहा, आपने अपनी खुद की सोच छोड़ दी. ओके, अगर आप अपने विषय में ये नहीं करेंगे और किसी और के कहने पे अपने नाम को नहीं बदलेंगे जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, तो अगर आपके पूर्वजों ने इस धरती का नाम भारत रखा है या भारतवर्ष रखा है, तो आप ये अचानक से अपने आप को इंडिया क्यों कहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि इंडिया नहीं होना चाहिए. ये एग्जाम्पल मैंने पहले पुस्तक जब ये रिलीज हुई तब मैंने दिया था. सीए का बहुत बड़ा ये डिस्कशन, सॉरी डिबेट चल रहा था 2019 में, और तब मैंने इंडिया के बजाय भारत कह दिया था. तो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने वाला एक भारतीय लड़का जो मास्टर्स वर्क में कर रहा था, उसने कहा भारत का इस्तेमाल इंडिया के संदर्भ में अनसेक्युलर है. तो मैंने आर्टिकल 1 निकाल के वहां पे चेप दिया कि आप बताओ संविधान नहीं कहता है. उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. जिसने ना संविधान पढ़ा, न जानता है कि भारत की इतिहास क्या है. ये है लोगों की सोच. That also explains why history becomes so relevant. आपके खुद के ऐसे ओपिनियंस हैं जो मतलब जिसके कोई बेसिस नहीं है, कहां से आप पढ़ के आते हैं, आपको कौन ये सब ब्रेन वॉश करना है, गॉड नोस, या स्कूल में आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है. सो द आइडिया बिहाइंड द सेकेंड बुक was to cover
द सेकेंड ट्रैक ऑफ भारतीय हिस्ट्री, क्योंकि सबसे नजदीकी ट्रैक क्या है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का। लेकिन उससे पहले पुराना एक ट्रैक है जो ऑलमोस्ट 800 या 900 साल चल रहा था, फ्रॉम 712 CE, जब सिंध वाज इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो वहां से एक ट्रैक चल रहा है और फाइनली पाकिस्तान बन गया। और अगर आप कहते हैं कि उस पहले सिरे से लेके यहां तक कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो आई वुड से तो हिस्ट्री को आप सिर्फ बिंदुओं के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, आप उन कड़ी को जोड़ नहीं रहे। The trick of understanding history well is to be able to connect the dots, not just focus on the dots. Then you will lose sight of the forest for the trees. This is a popular, like आपने जो चीज बोली इसमें लगा, there is a popular perspective that the divide between the two religions, or even the origin of the idea of Pakistan started with the partition of Bengal in 1905. if I'm not wrong, Correct. right? But you have mentioned that this is not exactly true. Correct. This is a partially right idea, not exactly right idea. Correct. ये कहाँ से शुरुआत होती है और हम इसे पॉपुलर पर्सपेक्टिव में हम इसे कैसे एक्सेप्ट हो गए अदर पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करने वाले जो इनिशियल क्लेरिक्स थे, जो मौलवी थे, वन ऑफ देम आई थिंक वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ, और एटलीस्ट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जामिया मिलिया। ओके, तो उनका ये क्या, आई थिंक इट वाज अशरफ सोमानी और समथिंग, दैट वाज हिज नेम, आई कोट हिम इन द, आई डोंट रिमेंबर इट फुल्ली। ही बेसिकली सेड दैट पाकिस्तान का जो वजूद है, it is there in their holy book, that they have an obligation to create a god for their faith. That is the statement that they make in the founders of Pakistan make in the book. Okay, so ये arguments half the time, मतलब हमारी हिस्ट्री पढ़ने की जो शैली है इतनी innocent और नाइव होती है कि अंग्रेज आया, सबको पाट दिया, निखर दिया। अगर आप ये मानने के लिए तैयार है जाति के विषय में कि पहले दरार थे और अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया, अब धर्म या मजहब के संदर्भ में ये क्यों नहीं कहना चाहते? द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू सो कॉल्ड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दरारें बहुत पहले से थी। आई एम नॉट सेइंग ब्रिटिश मैन डिड नॉट एम्प्लॉय द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आई एम सेइंग उसको थोड़ा आप चेंज कीजिए, एक्सप्लॉइट द एग्जिस्टिंग डिविजन एंड रूल पॉलिसी। Okay. There's a difference between the two. So don't close your eyes like an ostrich and bury your head in the sand. क्योंकि पाकिस्तान एक जगह का नाम नहीं है, एक स्थान का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है, और जहां आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। Okay. क्योंकि आपने अभी भारत की बात की, और आई थिंक यू डोंट टेक द वर्ड इंडिया दैट मच, भारत ही आप यूज करते हैं। After the book, my experience is So there was a debate some months ago. अब वो तो टाइट डाउन हो गया। It's kind of also it's kind of a political ocean, but still I want to ask you: do you think it's a practical solution to not take the name India and name India as Bharat completely? Not India, it is Bharat, but only Bharat. Can I disagree with you on something different? Sure. इस इशू को कॉस्मेटिकली अप्रोच नहीं करना चाहिए। नाम बदल दिया, ठीक है, उसके साथ सोच भी तो बदलनी चाहिए, राइट? आई एम सर्टनली फॉर रीनेमिंग बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्री। प्रयाग बना, अयोध्या बना, आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल विद इट। देन संभाजी नगर बना, आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल विद इट, आई एंडोर्स इट, आई अप्रूव इट, आई वेलकम इट एंड आई सपोर्ट इट फुल्ली। जब मद्रास को चेन्नई बनाया गया था, किसी ने सवाल तो नहीं किया था। कैलकाटा कोलकाता बना, किसी ने सवाल तो नहीं किया। Madras University has been among the foremost universities in the world with a fantastic recognition in foreign jurisdictions also. So the biggest fear of candidates was, अब चेन्नई हो गया तो उसका brand value निकल जाएगा. So what was the smart thing to do? Retain the name of the university, but do not change, but change the name of the city itself. Okay. अभी तक वो IIT मुंबई नहीं बना है. It is IIT Bombay. Okay. Yeah. And it is still the Bombay High Court. It is still the Madras High Court. It's not the Chennai High Court, right? So I'm saying, wherever it is possible, do it. जहां पे इकोनॉमिक्स कुछ और डिक्टेट करता है, डोंट। जब उसका भी समय आएगा तब चेंज कीजिए, क्योंकि जब आपके हाथ में इकोनॉमिक पावर हो तो बहुत सारी चीजें जो पहले मुश्किल लगती थी वो आसान हो जाएंगी। देन द वर्ल्ड डांसेस टू योर ट्यून्स।
then you wait for it. चाइना तो वही कर रहा है आज. So I am saying, I'm not saying be a blind idealist, but idealistic vision रखिए, and आपके जो means है उसको pragmatic रखिए, लेकिन आपकी दृष्टि जो है वहीं पे रहेगी कि हमें वहीं पहुंचना है, and existing realities को navigate करते 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 वहां जाना चाहिए. इस जनरेशन में जाएंगे या अगले जनरेशन में जाएंगे, ये तो नियति लिखेगी. मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, जिन्होंने बुक्स रीड किया वो जरूर जानना चाहेंगे कि आगे की सीरीज में आपके क्या प्लान है. प्लीज ब्रीफली जरा बताइए, और किस पीरियड तक हम जाएंगे इस सीरीज में. इस सीरीज पहले तो दिस वाज मेंट टू बी वन बुक, फिर से समझ में आ गया कि इसका ये एक त्रयी होगा, ट्रिलॉजी. एंड व्हेन आई वाज फिनिशिंग द सेकंड बुक आई रियलाइज नहीं तो आई हैव टू राइट वन मोर बुक, सो इट्स हैज बिकम अ टेट्रालॉजी. बट work expands with time is what they say, so I want to finish this as quickly as possible so that I can move to other things. तो 2025 तक मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, समाप्त करने की कोशिश करूंगा. All the books, all the 4 books. And the first book covered the period from the advent of Columbus to 1919. Second book थोड़ा पीछे फिर गया, and it started from 1700s to 1924 until the end of Khilafat. Third book अगेन 17th सेंचुरी से जाएगा, 1763 से जब सन्यासी रेवोल्यूशन शुरू हुआ था बंगाल में, वहां से लेके 1939 तक जाएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था. फाइनल बुक विल कवर फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू संविधान बनने तक. ओके, ऑलमोस्ट द आइडिया इज टू बेसिकली 7-8 years. यूनाइटेड नेशंस पे जितने भी कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड जितना भी हो रहा था, उसका सीधा प्रभाव हमारे संविधान के बनाने में गया था, हुआ था. सो ऐसा नहीं है कि हमने अपने दिमाग से कुछ ओरिजिनल निकाला. एक तो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. फिर वी आल्सो वेयर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड सजेशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज. फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, चेकोस्लोवाकिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है. इमेजिन. एंड वी हैव आल्सो ड्रॉन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डिस्कशंस, क्योंकि 45 तक यूनाइटेड नेशंस बन गया था. और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई थी वो 46 में हुई थी. आपके डिस्कशंस उसी साल शुरू हुए थे. सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू नॉट हैव कंसीडर्ड दोस कन्वर्सेशंस एट ऑल. तो इन सबको एक ही पुस्तक में कवर करना है. सो 1939 to 50 एक पुस्तक में दफावत है. I think we can't wait to read the books. Just Deepak, what was the last thing you bought from Amazon? A book or something? I think I ordered gifts for someone. Okay, so if you talked about gifts, so at Amazon we have a campaign called Gift a Book. Okay. Which talks about the culture of reading. Right. And our book is a gift that keeps on giving. Right. So our readers would really like to know 3 recommendations from you that can be given as gifts. Right. Sri Arun Shourie has been a huge influence on me. Okay. I would actually recommend 3 of his books. One is called The Missionaries in India, which captures the entire history of the prisons in Bharat. Second is called The World of Fatwas. It's a beautiful book. The third is called Worshipping False Gods. It's on Dr. Ambedkar, a critical analysis of Dr. Ambedkar's life and journey by Dr. Arun Shourie. According to me, these 3 books are stellar contributions to Indian historiography. And जो भी भारत के आधुनिक हिस्ट्री के बारे में समझना चाहते हैं, I would say it is indispensable to read all 3 of them. And I hope those books are still available on Amazon. Okay. Jithan Deepak, thanks a lot for joining us. And once again, congratulations for the huge success of these books and best wishes for the future books. Thank you so much.